Hello everyone, welcome to the second video of my YouTube channel. This is Krishna Jaiswal. So first, let me introduce myself. Uh, I have secured All India Rank 112 in GATE CC 22 for 2024, in GATE DA 997 in 2024, and 156 in GATE CSE 2025. So if I talk about my MTech selection, I got selected at IIT Bombay, IISc Bangalore, and all the top 7 IITs, including Triple IT Hyderabad MTech CSIS program. I secured 99.96 percentile in UGC NET. I have also qualified the state exam. If I talk about my government selection, I got selected at Power Grid as an executive engineer, and currently I am also working at Power Grid also. I also got selected as an official at IOCL, junior executive at Airport Authority of India, and Bell Probationary Engineer. If I talk about my scientist exam selection, I got selected at ISRO as scientist official, also at BAR as scientist official, and for the Ontario scientist exam, currently result is pending. I also get interview calls from this organization, but I skipped the interviews because I was currently working at Power Grid, that is DRDO, NHPC, SAIL, RFCL, and Hindustan Copper Limited Intelligence Bureau. Except I also have some other government selection, NHI Deputy Manager, UP Metro Assistant Managers. Beyond exams, I have 36 plus paid booking in TopMate, and I am also in top 1%, and I have 34k follower on around LinkedIn. So in last video, I explained what is GATE and what are the opportunities through GATE. So let me have a recap of what is GATE. It is basically graduate aptitude test in engineering. Like, it is a national level exams conducted by IITs and IIScs. It is conducted every year once, and it tests your course engineering fundamentals, and the score is valid for 3 years. It is basically a conceptual exam. So if I talk about exam pattern, it is a computer based test. Duration is of 3 hours. Total 65 questions are there, and total marks is 100. MCQs are with negative marking. MSQs are also there, but no negative marking. NET is also there, but negative marking are also not there for NET. There are basically 2 sections. One is for general aptitude, and other is for core subject. General aptitude is of 15 marks, and core subject is of 85 marks. So there are if I talk about number of papers in GATE, so basically there are 30 test papers. You can appear for this there are basically 30 test paper, like aerospace, agricultural, architectural, biomedical, biotechnological, civil, chemical, computer science, chemistry, data science. Like, list is exhaustive. You can check out this list. So basically there are 30 papers. Which streams are eligible for this GATE exam? If I talk about eligible streams, that are BE, BTech, B Pharma, B Arc. Like, you should have a 4 years degree plus, like, you can give in third year or higher, or already completed, like you are in third year or final year, or have completed your BTech degree, then you can go for GATE exam. Like, you have done bachelor's degree in architecture, then also you can go for GATE exam. If you have BSc research or BS, then also you can go for GATE exam. If you have done like a pharmacy doctoral program, you can also go for GATE exam. Like, you can check out the list. These streams are eligible for the GATE exams. So the most important question is how to start the GATE preparation. Like, हम लोग जान चुके हैं कि गेट एग्ज़ाम होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है. तो अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एस्पायरेंट्स के मन में आता है कि इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें. तो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे गेट हो या नीट हो या जेईई मेंस हो या कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी होती है कि सिलेबस को समझना, कि मेरा सिलेबस क्या है. सबसे इम्पोर्टेंट
ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सिलेबस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया तो आपका मेन जो इम्पोर्टेंट काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि सिलेबस होता क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट आई विल गाइड, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही, तो मैं सबसे पहले गेट सीएससी के बारे में ही बताऊंगा कि गेट सीएससी का मतलब सिलेबस क्या होता है। आप कोई अदर ब्रांचेस से हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या सिलेबस होता है और मुझे उसकी गाइडेंस चाहिए, तो मैं उसके रिगार्डिंग ही वीडियो बना सकता हूँ। यू कैन कमेंट इट डाउन कि आप किस एग्ज़ाम मतलब किस स्ट्रीम से अपेयर करना चाह रहे हैं और आपको उस स्ट्रीम लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और मैकेनिकल्स की सिलेबस की जानकारी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो फॉर दैट आई कैन आल्सो गाइड। So if I talk about GATE CSE syllabus, so basically there are 13 subjects which are C programming, data structure, algorithm, operating system, database management system, computer network, theory of computation, compiler design, digital, computer organization and architecture, using maths and discrete maths, and general aptitude. General aptitude is of like 15 marks. And if we add engine and discrete math, that is also of 13 to 15 marks. So basically total like on an average 30 marks is from your engine math, discrete maths and aptitude. So core part, which is core means like what which is the core subjects of computer science, that is of 17 marks. Like most of these subjects like C programming, data structure, algorithm, operating system, these subjects you are going to also study in your semester's exam. So these are like in your semester exams many subjects are there, and these subjects are like a subset of your semester exams. So this is the syllabus. First you need to understand this syllabus. So next part is what resources should I follow. Like many resources are there, many coaching platforms are there, and like some students are financially weak, so they can't afford a paid course. So what should they do? So they should go for a free content or paid course. So if I talk about free content, then you can explore YouTube. Like it is good for beginners like who are in first year oblique second year. Basically it is good for beginners. Yeah, like it is budget friendly because you are not going to invest even a single penny, just you need a internet and mobile phone. Basically multiple teachers are available, you can explore. Like you can search, like if you want to study operating system, you can in YouTube search box type operating system GATE, then you will find a list of teacher on the YouTube platform. You can explore, like many teachers are there, you can explore teacher one by one, and which teacher मतलब जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, आप उनसे मतलब उस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो. बट एक प्रॉब्लम आती है कि फ्री कंटेंट में कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कि आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ता है. कि कभी कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं होगा क्योंकि आपके ऊपर फोर्स नहीं है ना कि आपको ये पढ़ना है, तो उस केस में आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. तो अगर मैं पेड कोर्सेज़ की बात करूँ तो देयर आर मेनी पेड कोर्सेज अवेलेबल, यू कैन आल्सो एक्सप्लोर दैट पार्ट. बट इससे एक मतलब क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपकी एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मिलेगी. लाइक आप कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो लोग पहले CDS पढ़ाएंगे, फिर एल्गो पढ़ाएंगे, एक साथ पढ़ाएंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, DBMS पढ़ाएंगे. तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान मिल जाता है, साथ में लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रहती है. ये एक बेनिफिट है आपका पेड कोर्स लेने का. साथ ही कंप्लीट सिलेबस की कवरेज कराएंगे, मतलब गेट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको वो कवर करेंगे. टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, डिजिटल नोट्स भी मिलेंगे, और इससे आपकी टाइम बचती है. टाइम कैसे बचेगी कि आपको इधर से उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा. मल्टीपल मतलब रिसोर्स खोजने के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा. मतलब मल्टीपल डाउट्स होते हैं कि क्या मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ तो क्या ये मतलब टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, गेट लेवल का पढ़ा रहा है कि नहीं, या बस राइट पेड कोर्स में काफ़ी सही से पढ़ाता होगा, फ्री कोर्स में क्या पता. बस मतलब
ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पर आता होगा, तो काफ़ी डाउट्स रहते हैं मन में, जो कि आपको एक पेड कोर्स में डाउट्स नहीं रहते हैं। मतलब ये देखिए बेसिकली मल्टीपल पेड कोर्स अवेलेबल है मार्केट में, मल्टीपल पेड कोर्स आर अवेलेबल। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता है कि कौन सा कोर्स ले, कौन सा कोर्स ले। तो मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कर सकते हो कि मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जो 5 6 7 8 10 जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी फेमस प्लेटफॉर्म हैं, आपको थोड़ा मतलब एक वीक या 5 से 10 दिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हर प्लेटफॉर्म के आप हर एक टीचर्स के 1 या 2 वीडियो देख के जज कर सकते हो कि इनसे मेरी अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है तो मैं इनके पेड कोर्स ले सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन सी पेड कोर्स मेरे लिए अवेलेबल है। बट मेरे इनसे सजेशन ये रहेगा कि आप कोई भी पेड कोर्स लो, बट जस्ट आपको कंसिस्टेंसी एक और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कोई भी टीचर, जितने भी टीचर मार्केट में अवेलेबल है, सब मतलब आपको इतना मतलब पढ़ा देंगे कि आप गेट के 70 to 80% PYQs इजीली सॉल्व कर पाओगे। मतलब 10 to 20% PYQs में आप ऑब्वियसली फंसोगे, जिसके लिए आप को थोड़ा सा मतलब इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मतलब ऑल द टीचर्स आर मतलब गुड, मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन सब अच्छे हैं, मतलब सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, कोई भी टीचर ख़राब नहीं, कोई भी टीचर मतलब सब अपने में बेस्ट है। तो मतलब इतना वो लोग पढ़ा देंगे कि आपसे इतने PYQs बन जाएंगे। तो उतना मतलब टेंशन नहीं लेना है कि कोई बोल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, कोई बोल रहा है कि उस प्लेटफॉर्म पर जाओ। थोड़ा आप खुद का रिसर्च करो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि हाँ ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट सूटेड है कि नहीं, जिससे कि आप एक डिसीजन ले सको और एक मतलब एक कंसोलिडेटेड डिसीजन ले सको और अपना एक प्रिपरेशन सही से फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये कोर्स लो, ये वो कोर्स लो। एक टाइम के बाद डिसीजन लेना है, स्टार्ट कर देना है। और अगर मतलब मैं अपने सजेशन की बात करूँ तो अगर आप सीरियस हो तो आप एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस ले सकते हो, मतलब एक स्ट्रक्चर कोर्स ले सकते हो। अगर आप जस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो और एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप फ्री कंटेंट से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम रहता है। आप सपोज आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके पास मतलब 1 ही साल बचा है, फाइनल ईयर में आप गेट दोगे और आपके बाद उसके बाद अगर आप गेट नहीं निकलते तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो उस केस में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो कि मैं यूट्यूब से फ्री से पढ़ता हूँ, तो उस केस में आपको एक पेड कोर्स लेने की जरूरत। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके पास काफ़ी टाइम है, मतलब अगर वो 1 साल अपना एक्सपेरिमेंट करके टाइम बर्बाद भी कर सकते हैं तो फिर भी उनके पास 1 साल रहता है। तो उस केस में आपको फ्री कंटेंट के लिए जा सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ए पेड कोर्स। सो अब मतलब मैं अभी जूम कर रहा हूँ कि आपने एक कोर्स परचेज कर रखा है, तो अब मतलब सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो रहता है, इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि आप लेक्चर्स को कंप्लीट करो। मतलब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, नोट्स बनाना है, लेक्चर को कंप्लीट करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स में सर जो आपकी क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखने हैं। और उसके बाद जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप उसको एक बार रिवाइज करो, देन जंप टू PYQs एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PYQs गो फॉर टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सो मतलब आप क्या तो पूरा सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद PYQs कर सकते हो या किसी टॉपिक के कंप्लीशन के बाद भी PYQ कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा लेक्चर्स कंप्लीट हुआ, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तभी हम PYQ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके मतलब चॉइस आपकी है कि आप पूरा लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद भी PYQs कर सकते हो या एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद भी PYQs कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करोगे। अब मतलब प्रिपरेशन की टाइमलाइन कब कैसे रहनी चाहिए। अगर मैं अभी से बात करूँ तो अभी से आपके पास 12 मंथ्स हैं, तो एटलीस्ट मतलब आपको 1.5 मंथ्स में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। टू सब्जेक्ट कंप्लीट का मतलब, ये कंप्लीशन का मतलब ये नहीं कि बस लेक्चर्स देख लिए। कंप्लीशन का मतलब कि लेक्चर्स कंप्लीट है आपके, लेक्चर्स आपने देख लिया, लेक्चर्स किया, 10 PYQs
प्लस नोट्स प्लस टॉपिक पब्लिक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सारे आपके कंप्लीट रहना चाहिए। हर 1.5 मंथ्स में आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स एनी हाउ कंप्लीट होने चाहिए अलॉन्ग विथ ऑल दीज थिंग्स। सो अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊँ एक कि आपके पास मान लीजिए मतलब 12 सब्जेक्ट्स तो रहते ही है, तो अगर हम हर 1.5 मंथ्स में आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 9 मंथ लग जाएंगे, मतलब ओवरऑल सिलेबस ख़त्म करने में। तो बेसिकली टिल अक्टूबर एंड योर सिलेबस शुड बी कंप्लीट। सो आपने अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास कितने महीने बचे? 3 मंथ्स, मतलब 90 डेज बचे। अब 90 डेज़ को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट 45 डेज़, ये 45 डेज़ आपका कम्प्लीटली जाएगा किस में? जैसे कि आपने 12 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़, हर सब्जेक्ट की हर चीज़ याद है, तो आप 45 डेज़ जो आपके कंप्लीटेड सब्जेक्ट है उसको क्या करोगे? लेट मी मतलब नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, फिर वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास जो 45 डेज़ बचे इसको हम लोग मतलब 90 डेज़ बचे थे बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 45 डेज़ एंड अगेन 45 डेज़। तो इस 45 डेज़ में आप क्या करोगे? आप रिवीजन करोगे, रिवीजन ऑफ व्हाट? रिवीजन ऑफ कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स। दूसरा क्या करोगे? मान लो आपने PYQs फर्स्ट अटैम्प्ट में बनाया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपसे सारे PYQs बन गए हो, तो जो PYQs आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बने उसको भी आप रिसॉल्व करोगे, मतलब आप उसको दोबारा से सॉल्व करोगे। सॉल्विंग द PYQs which you couldn't solve in फर्स्ट अटैम्प्ट। मतलब सारे PYQ नहीं लगाने, क्योंकि आपने मतलब उस टाइम भी एक बार रिवीजन किया तो क्वेश्चंस आपसे बन ही गए थे, तो दोबारा से आपने रिवीजन किया तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस बनेंगे ही। बस वही क्वेश्चंस जो आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बने उसको दोबारा से सॉल्व करना है। और साथ में जो आपसे टॉपिक और जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया था उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है दोबारा से। तो ये 3 चीज़ें आपको ये 45 डेज़ में आपको कम करनी है। तो आफ्टर दिस 45 डेज़ आपने जो आपके 12 से 13 सब्जेक्ट है सबके रिवीजन कर लिए, जो आपसे PYQs नहीं बने उसको कंप्लीट कर लिया, और आपने टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के भी क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए। तो आपने अपने जो मॉड्यूल्स है मतलब बेसिकली आपके 12 सब्जेक्ट आपने कम्प्लीटली उसको क्या कर लिया? मास्टर कर लिया। तो अब आप यू आर रेडी फॉर व्हाट? फुल लेंथ टेस्ट। सो यू कैन गिव 1 mock every 2 or 3 days। सो बेसिकली आप एटलीस्ट 15 मॉक्स तो देनी ही है। सो इस तरह से आपकी एक पूरी जो टाइमलाइन होने वाली है वो आपकी प्रिपरेशन की टाइमलाइन वो मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे क्या टाइमलाइन रहने वाली है। तो इसके बाद आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए फुल्ली फ्लेज प्रिपेयर्ड हो। जस्ट अब आपको गेट एग्ज़ाम देनी है, बाकी आप टेस्ट दोगे क्या मतलब उसको कैसे एनालाइज करना है, क्या मिस्टेक्स होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब अपकमिंग वीडियोज़ में सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर पाना मुश्किल है। अभी मैं बस एक आपको टाइमलाइन बना कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सो आपने स्टार्ट कर लिया, इस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट कर लिया, PYQs कर लिए, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, और आपने फुल लेंथ टेस्ट भी अक्टूबर के बाद
45 डेज बाद आपने स्टार्ट कर दिया. सो डेट इज़ ऑल अबाउट गेट प्रिपरेशन फ्रॉम माई साइड. आप अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो एक गेट में इजीली आप टॉप 500 रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो व्हाट आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. मतलब जैसे कि डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, और सबके लिए एक अलग अलग रोड मैप रहती है कि फर्स्ट ईयर के लिए के पास मतलब काफ़ी टाइम रहता है तो वो अदर चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. और मतलब बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि प्लेसमेंट के साथ कैसे प्रिपेयर करें गेट की. इन सारी चीज़ों के लिए मैं डिफरेंट स्टोरी के लिए एक रोड मैप बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में. और थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आपने अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो यू कैन लाइक दिस वीडियो. आप मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो रियल गेट गाइडेंस के लिए. गेट और मतलब कैरियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो. मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. अगर आपको कोई मतलब कोई चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कवर करने के. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.